Assalamualaikum, dear students. Welcome to Bioinformatics and 3 section. जी Okay, just wait for 5 minutes for the remaining students. Then we will start our class. Okay, so before going to the next lecture, we briefly revise our previous class lectures. Okay, so in previous lecture, we have covered a perfect database features, then the problems that may associated with the perfect databases, then the reference sequence accession number formats and module types. We have also discussed some of the reference sequence databases, then the different sequence database including EBI, GenBank, DNA Data Bank of Japan's, then some problems associated with these databases. Who is causing the problems? Okay. Then we have discussed in detail about each elements of GenBank, including locus, definitions, accessions, versions, sequence length, molecular types, GenBank division, accessions, versions, gene identifiers, keywords, source, organisms, references, features. So today our topic will start from here. Before going to starting to this topic, if there is any query from the previous slides, please let me know. There is no any question. Okay, No, sir. that's good. So what is features? What is feature? A feature is simply an annotation that सर describe. स्लाइड नहीं शो हो रही हैं आपकी Is this clear now? यस सर Okay, so we were discussing about different elements of GenBank and RefSec. So some features are here listed. Features. So features is simply an annotation that describe a portion of the sequence.
It can also be known as characters and specificity and notations. Any annotations or any information that are associated with a single gene is known as its features. Okay? Then you can look here. These are some features like source. Source means organisms from where the gene of interest was collected. Then these are some parts. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay, so these are the features that are listed here. For example, genes. Genes is described in the start and end sites of sequences. जीन की बात करते हैं तो जीन का मतलब ये होता है कि जहाँ से जीन सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा हो वहाँ से लेकर जहाँ से एंड हो रहा हो, दिस completely known as gene. Then second is axon. Axon, you know, axon some part of genes. Genes के दरमियान में से कोई part हो सकता है that's coded into amino acids. Then the CDS, that is known as coding sequence. So coding sequence means the complete and the final sequence that are translated into amino acids. Then intron, you know what is intron? Intron is the non-coding region of mRNA or the genes. So these are some definitions of genes, axon, you can read from here. For example, gene sequence portion that describe the beginning and the end of a gene. Exon is a sequence segment that contains an exon. Exons may contain portion of 5' and 3' UTRs. UTRs means untranslated regions that are located uh, on extreme regions of the gene. जीन के स्टार्ट में भी कुछ UTRs होते हैं और एंड के ऊपर भी कुछ UTRs सीक्वेंसेस होते हैं. उनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि एज यू नो, अगर हमें किसी सीक्वेंस को ट्रांसलेट करवाना हो तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से इनिशिएशन फैक्टर्स वहाँ से सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करें एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करें. तो these UTR regions or the sequence are actually providing the platform for the polymerase, and that polymerase bind at that bind with the sequence and start transcription and translation. So इसलिए जो UTR regions है that may be considered as important. Then the next heading is coding sequence. What is coding sequence? Sequence of the nucleotides that's code for amino acids of the protein product or coding sequence. सीक्वेंस का वो पार्ट जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में ट्रांसलेट हो उसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं. In case of coding sequence, there are always some start codon and some stop codon at the end of sequence. सीक्वेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पे स्टार्ट कोडन होना चाहिए और जहाँ पे एंड हो वहाँ पे स्टॉप कोडन होना चाहिए कोडिंग सीक्वेंस के अंदर.
Then these are again same thing. Introns. What is introns? Introns are the transcribed sequence. एक्चुअली ये ट्रांसक्रिप्शन तो होती है जब एम आर एन ए या जिसे हम प्री मेच्योर आर एन ए कहते हैं वो बन रही होती है, तब इंट्रॉन भी इंक्लूड होता है। बट जो ही एम जो इमेच्योर आरएनए मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा होता, तब जो इंट्रॉन पोर्शन होता वो रिमूव होता है थ्रू स्प्लाइसिंग। ओके, then the next one is poly A tail. Poly A tail are the nucleotide sequences that are attached at the end of sequence. जहाँ से सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, उसके फौरन बाद कुछ poly A tail means एडिनो और एडिनिन, जिसे हम कहते हैं एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, कुछ ऐड होता है जस्ट लाइक ए चेन की तरह, तो उसे हम पॉली ए चेन कहते हैं। एंड the enzymes that are involved in poly A signal formations are known as polynucleotide adenyl transferase। उसका फंक्शन क्या है कि पॉली ए टेल, ए मींस एडेनिन, एडेनिन का ऐड करते जाना। ठीक है, ये सिंपल होता है। Then base count, if you are looking on the right side, there are some numbers here with A, C, T, G means number of number of adenine, guanine, cytosine, and thymine. So this is known as base count. The next one is origin, means origin contain the sequence data which begin on the lines immediately below the field. जहाँ से field ख़त्म हो जाए वहाँ से origin start होता है। Origin means sequence that are starting। ये देखिए, ये 1 से लेकर जो 1500 तक sequences हैं, all these are known as origin। Then there are some just wait। ये क्लियर है आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्रॉस रेफरेंसेस टू सीक्वेंस डेटाबेस। ये हेडिंग है क्रॉस रेफरेंसेस टू सीक्वेंस डेटाबेसेस। होता ये है समटाइम्स सबमिटर जब सबमिट कर रहा होता सीक्वेंस, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डिलीशंस की वजह से, ओके जस्ट वेट, आई थिंक, ओके नाउ is this clear? Cross references to sequence database. The next heading is cross references to sequence database। होता ये है जब कोई सीक्वेंस हम किसी डेटाबेस में सबमिट कर रहे होते हैं, तो वो जो सीक्वेंस हमने सबमिट किया होता है दैट्स सर्च इनटू द अदर्स रिलेटेड डेटाबेसेस, और जो कॉमन पैटर्न की बेस पर उसके अंदर सर्चिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल सीक्वेंस। कैनोनिकल सीक्वेंस मीन्स मोस्ट कॉमन सीक्वेंसेस। मोस्ट कॉमन सीक्वेंस का मतलब ये है कि देयर आर ऑलवेज सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू चेक अ सीक्वेंस, कि हर जो भी हम सीक्वेंस सबमिट करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसकी चेकिंग होती है, उसके ऊपर रिव्यू होता है कि वो सीक्वेंस हमने जो रूल सेट किया हुआ है उसके मुताबिक है, या कोई नॉवल है, या कोई यूनिक है। सो इफ a sequence submitted to the AMBL
GenBank or DNA Data Bank of Japan presents some variations, changes, variation means changes with the canonical sequences. जो ऑलरेडी वहाँ पर सीक्वेंसेस हैं उनसे अगर चेंज हो मीन्स अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो तो these letters are documented in the sequence conflict subset of the sequence section. तो डेटाबेस के अंदर एक सब सेट होता है सीक्वेंस सेक्शन में, उसे हम सब सेक्शन कहते हैं. उसके अंदर एक सीक्वेंस कन्फ्लिक्ट का ऑप्शन होता है. तो समटाइम्स हम सीक्वेंस सबमिट करते हैं तो वो सीक्वेंस कन्फ्लिक्ट के अंदर सबमिट होता है. उसके बैकग्राउंड में रीज़न ये होता है कि जो हमने सीक्वेंस सबमिट किया हुआ होता है देयर मे बी ऑलवेज ओके. Now the meeting is locked because some students are trying to, and that was Sonia Yasir. So नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से बिहेवियर रखे तो मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा प्लीज़. सो बी केयरफुल, अपने माइक को कंट्रोल में रखे. अदरवाइज सर वो मैं यहाँ गलती से ना वो कजन्स ने फोन पकड़ लिया था. अदरवाइज मैं यहाँ से सबको फिर सबके माइक्स में क्लोज रखूँगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए प्रॉब्लम होगा. ओके सो however, if some variations are severe, the underlying cross references to the EMBL GenBank database is tagged. अगर कुछ वेरिएशन बहुत ज़्यादा सीवियर वेरिएशन हो, किसी ने सबमिट किया है उसके अंदर सीवियर प्रॉब्लम है उस सीक्वेंस के अंदर, तो वो क्या करते हैं उस सीक्वेंस को एक टैग लगाते हैं सीवियर कंडीशंस के साथ. उसके अंदर टैग लगाते हैं मींस उस सीक्वेंस के साथ इंफॉर्मेशन वो टाइप करते हैं कि देयर इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम विद दिस सीक्वेंस. सो जो नेक्स्ट कोई रिसर्चर है वो पहले उसको देखेगा कि अच्छा यहाँ पे सीवियर प्रॉब्लम है, तो उस सीक्वेंस को नेक्स्ट रिसर्च में लेके जाने के बजाय न्यू स्टडी की तरफ जाता है. तो कौन से टैग हो सकते हैं? 4 डिफरेंट टैग्स हैं जो उसके साथ हम ये जो डेटाबेस वाले टैग लगाते हैं, अटैच करते हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रेम शिफ्ट. अगर variation are due to some insertion or deletion of one or more nucleotide in the submitted sequence. अगर कोई एक इंसर्शन या डिलीशन हो किसी एक सीक्वेंस के अंदर जो हम सबमिट करते हैं उस वक्त, तो उससे क्या होता है फ्रेम शिफ्ट काज होता है. तो उस सीक्वेंस के साथ ये टैग लगाया जाता है देयर इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम विद द फ्रेम शिफ्ट to this sequence. Similarly, अगर अगर कोई इनिशिएशन कोडॉन में या स्टार्ट कोडॉन जिसे हम कहते हैं वहाँ पे अगर कोई डिलीशन या इंसर्शन हो तो उसे हम डिफरेंट इनिशिएशन टैग करते हैं. सिमिलरली कुछ जीन जहाँ से टर्मिनेशन रीजन है, जहाँ पे ट्रांसलेशन ख़त्म होती है, उस रीजन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम डिफरेंट टर्मिनेशन रीजन कहते हैं. सीक्वेंस प्रॉब्लम्स. Some variations are due to an erroneous genes model predictions, erroneous ORF assignment, miscellaneous या कुछ ये चीज़ देखें. मतलब सिंपल आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ORF के अंदर, ORF मींस ओपन रीडिंग फ्रेम्स, तो इनके साथ जो डिफरेंट भी जीन मॉडल प्रेडिक्शन के थ्रू आ सकता है. मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे हम अदर देन अबाउ 3 कैटेगरीज, जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे हम सीक्वेंस प्रॉब्लम लिखते हैं जस्ट. अब ये हैं जस्ट सबमिटर्स. ओके
समटाइम्स ऐसा होता है, बट ये करंटली एट दिस स्टेज के ऊपर जो अब हम 2021 की अगर हम बात करते हैं या 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम्स जो क्रॉस रेफरेंसेस सीक्वेंस के साथ इश्यूज हैं, अब ये सारे के सारे मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो चुका है। मैंने काफ़ी सालों से मैंने इस तरह का कोई प्रॉब्लम अब नहीं देखा है। जब से मैं 2016 से मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, तो अब डेटाबेसेस के अंदर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं देखी। तो बट ये कि जस्ट गो थ्रू करना था हमें। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्लाइड नाउ। अब ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डेटाबेसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डेटाबेसेस? ओके, देयर आर सम issue with the slides. Okay, so there are different types of databases. This is important कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ databases हैं जिन्हें हम primary database कहते हैं। Primary database means that's our original databases, जो फर्स्ट टाइम सबमिटर जहाँ पे सबमिट कर रहा होता है, उस डेटाबेसेस को हम प्राइमरी डेटाबेस कहते हैं। प्राइमरी डेटाबेसेस कंटेन द प्राइमरी इंफॉर्मेशंस, दैट मींस सीक्वेंस एंड उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, सिर्फ उसी टाइम पर वही अटैच होता है। और द वन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी डेटाबेस इज GenBank. Okay, then there are other databases, many other databases, बहुत सारे databases हैं, that are known as derivative databases. Derivative databases means the databases that are derived from primary databases, जो primary databases से sequence उठाकर उनकी annotation करते हैं using different bioinformatics tools, और एक new database डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें हम derivative databases कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस नेक्स्ट स्लाइड की यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो दिस इज प्राइमरी डेटाबेस, दैट्स जेन बैंक। ठीक है, ये एक प्राइमरी डेटाबेस है। इसके अंदर क्या आ रही, देखें, सीक्वेंसेस है, ओनली सीक्वेंसेस। देयर आर टू मच सीक्वेंसेस एंड दीज सीक्वेंसेस आर कमिंग फ्रॉम different sequencing centers, genome projects, individual scientists and the sequencing companies, यहाँ से आ रही है। ये सारे के सारे sequences हैं। So this is the primary database. Then these are derivatives databases. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, RefSeq, reference sequence, genome assembly and genomes, these are secondary databases. कैसे हैं ये देखें, यहाँ पे sequences है, too much raw sequences, then these raw sequences are converting into informations using computer science. So therefore the third party that are looking on this primary sequence are the कंप्यूटर साइंटिस्ट, और कोई प्लेटफॉर्म हो सकती है जहाँ से इन रॉ एंड प्राइमरी डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेटिव एंड सेकेंडरी डेटा में। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है तो प्लीज़ बता दे। Is there any question? No, sir. No, sir. Okay. So the next topic is exon, introns, coding sequences, ORF and UTRs. ये सारे इन सब सारे जितने भी टर्म्स हैं, all these terms should be now, क्योंकि these are the basic terms of molecular biology and the cell biology and genetics.
hopefully everyone has knowledge about these topics. ऐसा ही है यस सर, मेरे हमने ख्याल मॉलिक्यूलर से बायोलॉजी में पढ़ा था। मेरे ख्याल से इसको मुझे डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ के आए हैं. यस Anyhow, सर, here is a graph like structure. आप देखें. Let's suppose this is the genes. ये complete gene है एक, और एक जीन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. Promoter regions हैं, that are also called regulatory regions. उसके बाद जहाँ से प्रोमोटर रीजन्स ख़त्म होती है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन साइट स्टार्ट होता है, जिसे हम TSS हम कहते हैं. उसके बाद एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3. इट्स मीन देयर आर 3 एक्सॉन. एट द इनिशियल स्टेज जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो all introns also retain in the primary transcript, जिसे हम प्री मैच्योर mRNA कहते हैं. उसके अंदर इंट्रॉन भी होता है. ये देखें, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 प्रेजेंट है. बट then after the splicing event, the intron portion will remove and the exon portion will join to each other and form a mature mRNA. And finally, this mRNA is also known as coding sequence, and through translation, this coding sequence or the mature mRNA are translated into amino acid sequences. Then इस sequence के बाद the protein sequence will fold itself and form a 3D like structure. Okay. यस सर, TSS stand for transcription start sites. AGGT अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, AG, these are splicing regions. इनको हम splicing regions कहते हैं, junction कहते हैं. ठीक है, यहाँ से splicing हो रही होती है. Then the ORF stand for open reading frame. Open reading सर frame. Yes, please, मुदस्सिर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो यूटीआर है इसका जी. सेम फंक्शन ही होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब राइबोसोम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता है इसका? इसका डिफरेंट होगा। Okay, जी सर। प्लीज एक मिनट. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे है mRNA. एक ओके, mRNA के साथ है पॉली ए टेल. इसके दो फंक्शंस हैं. एक फंक्शन तो ये है कि इसको हम पॉली ए टेल या कैपिंग कहते हैं. कैपिंग से ये होता है कि जो एक्सॉन न्यूक्लियसिस एंजाइम्स हैं, दैट्स विल नॉट एक्ट ऑन दिस सीक्वेंस. इसको चॉप डाउन नहीं कर सकता, साइड से न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं कर सकता. सेकंड, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, this will provide a platform for polymerase or the ribosomes. जो ribosomes हैं या polymerase हैं, अगर यहाँ आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे polymerase होगी. अगर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ribosomes हैं, ribosomes की बाइंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, UTR रीजन्स. ठीक है, तो ये माइक्रोब्स के अंदर आई थिंक ये प्रोक्रियोट में भी होता है और यूक्रियोट में भी होता है. ओपन रीडिंग फ्रेम, जब भी हम कोई एक सीक्वेंस को रीड करते हैं तो देयर में बी 6 रीडिंग फ्रेम, 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड and 3 from left side and 3 में from right side. ये देखें, क्योंकि each amino acids code by triplet of codon. ठीक है, तो हमें ट्रिपलेट के हिसाब से ट्रांसलेट करना है. अगर ATG से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो दिस इज फर्स्ट कोडॉन, इट विल ट्रांसलेट a single amino acids. Then these 3 triplet codon translate another amino acids. तो ये एक फ्रेम आ गया आपके पास. अगर हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट
न्यूक्लियोटाइड डिलीटेड हैं, तो what will happen? The triplet codon will move to the next one, जहाँ पे TG था, अब ये TGA है. That will again code for another polypeptide. So frame 1 से जो आपके पास amino acid आ रही है, that will be different, and from frame 2 से जो आपके पास amino acids आएगी, that will be different. Similarly, frame 3 means the third it's starting from the third codon से अगर आप start करें, तो that will create the third frame shift. Similarly, अगर आप इसको राइट साइड से अगर आप रीड करते हैं, राइट साइड से रीड का मतलब ये है कि you know that there are two double stranded helix. डीएनए डबल हेलिकल होता है और एक स्ट्रैंड से 3 जनरेट होता है, तो दूसरे स्ट्रैंड से भी 3 जनरेट होता है. So in this way there are 6 possible frames may be originate. जब भी हम ओपन रीडिंग फ्रेम जनरेट करते हैं तो 6 ओपन रीडिंग फ्रेम जनरेट होता है. ओके, CDS you can read from here. Definition वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. The actual origin of DNA that is translated to form proteins, while the ORF may contain introns as well. अब ये देखें ORF और CDS में क्या फ़र्क है. ORF और CDS में ये फ़र्क है, जो CDS है that's completely translate into amino acid, but in case of ORF क्या होता है कि कोई भी DNA फ्रैगमेंट हो सकता है. ORF, ठीक है, ORF कोई भी DNA फ्रैगमेंट हो सकता है, उससे जो भी फ्रेम जनरेट होता है. बट CDS के अंदर स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन शुड बी स्पेसिफाई. तो जब तक स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन स्पेसिफाई ना हो, वो कंप्लीट CDS नहीं होता है. राइट? Then from here some practical sessions. सर Yes, please. सर आपने मीटिंग लॉक की है? Yes. सर वो अनलॉक कर दें, वो कुछ बच्चों का जो इशू आ रहा है. No problem, बच्चों. ये this is the end of lecture. I think we have spent more than half an hour. अगर आप लोग ऐसा ही ज्वाइन करते रहेंगे अपनी मर्जी से, जब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तब आप लोग ज्वाइन करते रहें, तो definitely it should be locked, बच्चों. Now Yes, I sir. am unlocking this meeting, but next time please careful रहे. कुछ स्टूडेंट एक्चुअली बाहर से आकर ज्वाइन करते हैं, फिर शोर मचाते हैं, फिर एकदम लेफ्ट करते हैं मीटिंग को. क्योंकि जो भी आप में से बात कर रहे होते हैं, यहाँ मेरे पास ऊपर लिख के आ रहा होता है सामने who one is talking, तो मेरे पास नेम सामने शो हो रहा होता है जब भी आप में से कोई माइक्रोफोन ऑन करते हैं. तो okay, then these are some practical sessions. As far as practical sessions, in today labs we have gone through some of basic elements of NCBI. ठीक है, NCBI से हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिट्रीव किया था आज, और प्रोटीन सीक्वेंस, some associated informations and some these are some other informations जिनकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हैं. अगर हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करें तो टाइम इश्यूज होगा, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं. Similarly, another protein database, that's XPACY, Swissprot, Tremble, इनकी तरफ हम तरफ देख सकते हैं. What is XPACY? XPACY सर्वर अगर आप यहाँ पे ओपन करें, this is a platform, XPACY.
and it consists of multiple tools. बहुत सारे tools यहाँ पे available हैं. Yes, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स वालों ने डिज़ाइन किया है, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, ये सारे के सारे डिफरेंट टूल्स हैं. ये देखिए, आप डिफरेंट टूल्स को देख रहे हैं. अगर आप जीनोमिक्स स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ जीनोमिक्स से रिलेटेड रिसोर्सेज आपके पास आएगा, डेटाबेस एंड टूल्स. अगर आप मेटा जीनोमिक्स, दैन यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप देख लेते हैं तो EPD है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर डेटाबेसेस. This is gene expression expertise. Let's see what is this. हम इसको तरफ देखते हैं, ये क्या चीज़ है. BGEE include knowledge base with expert curation and software tool for gene expression. Okay, so this database is for the expression of different genes. What does it means, expression? Expression का क्या मतलब है? कोई बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? सर प्रोटीन का बनना डीएनए से. नो, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम. सर वो एक्सप्रेशन तब भी होगा ना जीन का जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, मतलब फंक्शनल पार्ट में जाएगा. यहाँ पे एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मींस mRNA इज मेकिंग. इसका ये मतलब होता है कि जब हम RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद हम PCR वगैरह करते हैं, तो उस पर रिज़ल्ट आता है, या रिज़ल्ट सम टाइम्स रिज़ल्ट आता है आपके पास, सम टाइम्स you will not be able to find some positive results. So expression means ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन. कोई एक जीन है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं. देन ट्रांसलेशन हम कहते हैं. ट्रांसलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम mRNA. ठीक है. So there may be multiple tools at this websites. So ये इस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आप अपने पास इनको ज़रा देख लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है. Then what is the next? Then SwissProt and Tremble. I think we have already, मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को ऑलरेडी डिस्कस किया था शायद प्रीवियस लेक्चर में. SwissProt के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस लेक्चर्स में. हाँ सर. No, sir. Okay. चले, कोई बात नहीं. This is another databases. It contained different informations related to sequence, protein sequence, nucleotide sequence, mRNA sequence, different information हो सकता है. सर ये सीक्वेंस हमें कैसे बताएगा कि न्यूक्लियोटाइड है या आरएनए? सॉरी, दोबारा पूछिए प्लीज. सर ये हमें कैसे बताएगा? यहाँ से आप कोई भी सीक्वेंस यहाँ सर्च करें तो आपके पास अगर अमाइनो एसिड के फॉर्म में हो तो आप उसका मतलब प्रोटीन सीक्वेंस है. अगर ATG की फॉर्म में हो तो इसका मतलब आपका के पास न्यूक्लियोटाइड है, सिंपल. आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट एक्वापोरिन्स लिख रहा हूँ, तो देयर आर मेनी सीक्वेंसेस. ये देखें, बहुत सारे जीन्स है. दीज आर एंट्रीज. SwissProt means specially involved in protein sequences. ये स्पेशल जो फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया था तो उस वक़्त यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन सीक्वेंस होता था. बट नाउ देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशंस दैट्स आर एसोसिएटेड विद दिस सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्वापोरिन लिखा तो फिर मेरे पास कुछ जीन्स आए, और उन जीन्स में से मैंने देखा है, ये देखें, दिस इज एक्वापोरिन, दिस इज जीन नेम, दिस इज ऑर्गेनिज्म, दिस इज स्टेटस. ये हम
कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे जहाँ पे सीक्वेंस क्रॉस रेफरेंस डेटाबेसेस, और वहाँ पे जो जिन सीक्वेंस के साथ प्रॉब्लम होता था हम लिखते थे कि शायद फ्रेम शिफ्ट है यहाँ पर, या कोई डिफरेंशियल जो डिफरेंट इंसेशन है या टर्मिनेशन कोडॉन में इश्यूज हैं। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ये जो रिव्यूड हैं, रिव्यूड का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड में स्विस प्रोट ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम बैठी हुई है वो क्या करते हैं, इस सीक्वेंस के ऊपर बाकायदा तौर पर रिव्यू करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे नंबरिंग देते हैं। अगर कुछ सीक्वेंसेस के वन है सिर्फ आउट ऑफ 5, इट्स मीन दैट्स नॉट हाईली वैलिडेटेड। ठीक है, अगर कुछ सीक्वेंसेस के 5 में से आउट ऑफ 5 है तो इट्स मींस हाईली वैलिडेटेड एंड वेल नोन सीक्वेंस। ठीक है, जो सम सीक्वेंस यहाँ होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 को हाईलाइट किया जाता है, स्कोरिंग देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सम साइंटिस्ट ने इसको वैलिडेट किया है या कुछ पेपर्स इसे प्रूफ के तौर पे हैं, बट ज़्यादा डेटा नहीं है इसके बारे में और वेल नोन सीक्वेंस नहीं है। बट इन दिस केस, इस केस के अंदर जो एक्वापोरिन PIP22 है, दैट इज वेल नोन इन अरेबिडोप्सिस, therefore it's getting 5 score out of 5। ठीक है, so we can also extract sequences। हम यहाँ से सीक्वेंस भी ले सकते हैं। ये अगर आप इसको थोड़ा सा बॉटम की तरफ अगर आप मूव करते हैं, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस मींस कौन कौन से टिश्यू के अंदर इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ओके, जितने भी एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी मींस टोटल आरएनए, टोटल एक्सट्रैक्टेड आरएनए, जो भी टोटल एक्सट्रैक्टेड आरएनए होता है उसे अगर हम स्टडी करें तो उसे हम ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी कहते हैं। ये देखें, here is the protein sequence and you can get the faster sequence from here। इसके ऊपर क्लिक करें तो this is sequence and due to the start codon। आज अगर आप लोग क्लास में लैब में थे पिछले, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि what is the faster format, as it should be start with greater sign, then followed by some accessions or the name of the genes, then from the next line sequence should be start. This is known as FASTA sequence. Okay, similarly there are another databases, that's as PDB and PDB-Sum summarize and analyze of PDB structure. This is again the next databases, as these are practical sessions of PDB. Just slide here PDB, then you will get some RCSB protein. Yes, please. सर ये जो डेटाबेसेस वगैरह जो हम सारे पढ़ रहे हैं, इसकी हमारे पास जो हमारी प्रैक्टिकल वर्क है या प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या है, इसको हम फिर किस क्यों पढ़ रहे पर्पस हैं? के लिए यूज कर, हाँ इसका पर्पस That's क्या, हम इससे क्या फाइंड करते हैं? हाँ that's good. These actually the research for the research purpose. ये सारे के सारे जो जैसे हम किसी डिजीज के बारे में फाइंड करना हो, फिर यही हम इसी को यूज करेगा। यस, अगर आप किसी डिजीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से उस प्रो देखिए, जब भी आप कुछ भी स्टडी करें तो अल्टीमेट बैकग्राउंड में क्या है, जीन है, दैट्स आर कंट्रोलिंग दैट्स फीचर और दैट्स यस करेक्टर, सर, ऐसा ही है। यस तो सर। उस जीन के ऊपर आपको स्टडी करनी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल, यस अगर मैं कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे उन जीन्स को सबसे पहले फाइंड करनी चाहिए जो कैंसर के अंदर इन्वॉल्व हैं।
ठीक है। यस सर, फिर जो मैं हमारे पास सर सिंपल एग्जांपल सिकल सेल का है, यस सिकल सेल एनीमिया की अब अगर आप वो बात जो करते हैं फ्रोलिन तो की जगह वेलिना जो सिंपल एक अमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट की वजह से वो पूरा का पूरा जो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है दैट डिस्टर्ब। यस सर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ से सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज, दीज आर डेटाबेसेस, इनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनका एडवांटेज ये है कि हम बस at this stage, let's suppose at this stage we are totally blank regarding a cancer, ऐसा ही है। अगर Yes, आप कैंसर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि वाटर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जीन्स के ऊपर प्लांट्स के अंदर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिटरेचर फाइंड करनी होगी कि मैं देख सकूं कि कौन से जीन कहाँ पे स्टडी हो गई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो फिर उनका एक्सप्रेशन लेवल किस तरह से है, कौन कौन से टिश्यूज़ में है, कौन से टिश्यूज़ में एक्सप्रेशन नहीं है, और उससे सिमिलर कौन से सीक्वेंसेस हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका 3D स्ट्रक्चर क्या है, उसका एक्टिव रीजन्स क्या है। All yes, these informations are available in these databases. जी Okay? ये यस इन databases के अंदर informations available है, इसलिए हम ये databases पढ़ रहे हैं। ठीक This है। is another databases. For example, अगर I want to work on COVID-19 related some proteins, so मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले COVID-19 जो प्रोटीन है उसे इनवेलप प्रोटीन, कोई इनवेलप प्रोटीन है जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो उस सबसे पहले मैं, अगर ऑलरेडी 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं तो यहाँ से प्रोटीन सीक्वेंस मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद 3D PDB मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो वायरल प्रोटीन है वो ह्यूमन के कौन से प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर रही है। दिस इज़ अ नोवेल काम टोटली, अभी तक पॉसिबल है कि कुछ साइंटिस्ट ने इस पे काम किया हो, पर बहुत सारे अभी अननोन हो सकता है। सो मेरा टारगेट क्या है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन है ये ह्यूमन बीइंग के कौन से प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से इट मे इजीली इंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इसकी इंट्रैक्शन को रोका जाए ह्यूमन जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ, ताकि ये वायरस इंटर ही ना हो सके। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें चाहिए कि हम इनकी इंट्रैक्शन स्टडी करें, डॉकिंग करें, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन करें डिफरेंट ह्यूमन प्रोटीन्स के साथ। तो अगर यहाँ पे 3D प्रोटीन अवेलेबल है तो इजीली वी कैन सेलेक्ट प्रोटीन, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड फाइल कर सकते हैं। इवन आप प्रोटीन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं डेटाबेसेस के अंदर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकंड, अगर आप ह्यूमन प्रोटीन्स को भी देखते हैं तो डेफिनेटली दैट्स विल आल्सो बी हियर। ये एक डेटाबेस है, यहाँ पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वायरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी यहीं पे होगा, ह्यूमन बीइंग का भी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एक साइड से हम वायरल प्रोटीन को उठा लें, एक साइड से हम ह्यूमन प्रोटीन को उठा लें, फिर इनका आपस में मॉडर्न सिमुलेशन के जरिए इंट्रैक्शन चेक करें, एमडी सिमुलेशन के जरिए। ठीक है, तो ये एक नॉवल स्टडी हो सकती है जिसमें आपको न्यू टारगेट साइट्स एंड न्यू बाइंडिंग साइट्स आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो न्यू टारगेट साइट्स एंड न्यू टारगेट बाइंड्स है उन्हीं की बेस पर हम वैक्सीन डिज़ाइन करते हैं। फिर जो हम वैक्सीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो वही एक्टिव साइट्स और एक्टिव बाइंडिंग अमाइनो एसिड्स की बेस पर ही हम वैक्सीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए these databases are very important. Then there is another database that's known as a CAC pathway database. अगर आप इसको कॉपी कर ले यहाँ से,
and go to this website. ये देखिए, this is another collection of database dealing with genomes, biological pathways, disease, drugs, and chemical substances. So, for example, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, हम नहीं जानते कि वो कौन से मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है, सो हम क्या करेंगे, हम अपने उस सीक्वेंस को इस डेटाबेस के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद ये डेटाबेस इट हैज़ एबिलिटी टू डिफाइन द पाथवे ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी सीक्वेंस हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, तो बैकग्राउंड में बेस्ड ऑन डिफरेंट एल्गोरिदम्स हमने जो सीक्वेंस सबमिट किया होता है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के ज़रिए डेटाबेसेस में सर्च करके बाद में हमें एक पाथवे प्रोवाइड करता हो जाता है, and that pathway will be related to our gene of interest. For example, if we go to this and we can select some of if you are looking here, I am just checking the metabolic pathway of some listed genes. ये देखें, these are the complete pathways. ये क्या है, ये complete pathway हैं, अगर आप देख रहे हैं, these are complete pathways. अगर इनमें से कोई हम एक जीन को स्टडी करना चाहते हैं, कोई एक पाथवे को साइड से आप सिलेक्ट करते हैं, ये देखें द हाईलाइटेड रीजन्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यू विल गेट दैट पाथवे। ये ठीक है, ये देखिए, दिस इज अ कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो अगर हमारे पास सीक्वेंस है या कोई एक नोवेल जीन है उस एंड वी वांट टू चेक द मेटाबॉलिक pathway of that gene, then what we will do, we will search, we will use this database to find the metabolic pathway of our gene of interest. In this way we will be able to find the exact location and the exact function of our gene of interest. For example, in this case, if this is our gene of interest, okay, back, that name is 31310. अगर सपोज करें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका फंक्शन क्या है, आप बता सकते हैं यहाँ से? इट्स फंक्शन इज change of alpha D glucose 1 phosphate to alpha D glucose. इसका मतलब ये फंक्शन है इसका, ठीक है। what is doing कि यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर। सो अगर हम इस पाथवे को स्टॉप करना चाहते हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीन को साइलेंस करना होगा। इस जीन को अगर हम यहाँ से साइलेंस करते हैं then this path will be stopped. Similarly, अगर कोई और पाथवे हैं like this और ये दो जीन अगर आप साइलेंस करते हैं तो oxaloacetate will not be converted into phosphonopyruvate, I think phosphonopyruvate है। So in this way, these metabolic pathways will help us to identify the sites of reactions or the function of our gene of interest, and it also determine what may happen if we silence our gene of interest, right? इसलिए ये जितने भी databases हैं, these are very important. Is there any question? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।
एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर अभी हमने पीडीबी में ये देखा ना कि वायरल की जो प्रोटीन होगी वायरस की, उसका इंटरेक्शन ह्यूमन प्रोटीन के साथ हम डिटरमिन करेंगे डॉकिंग वगैरह के थ्रू। यस तो सर इसको हम कंपेयर भी इन डेटाबेसेस के थ्रू करेंगे? यस, बहुत सारे डेटाबेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट सम टाइम्स अगर हमारे पास डेटाबेसेस नहीं हैं तो कुछ टूल्स होते हैं। क्या होता है टूल्स? जी what will be the function of tools का फंक्शन ये होता है कि बैकग्राउंड में एल्गोरिदम्स को यूज करके कोई दो सीक्वेंस को या दो स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जी फंक्शन है सर। टूल्स। That's are the function of tools, not database. Database means collection of data that can be retrieved, that can be easily taken by, that may be easily available for public। ठीक है, बट टूल्स, जी सर। टूल की अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे सर्च के अंदर देखें तो आई थिंक देयर में बी सम टूल्स लाइक दिस विजुअलाइज 3D वीवर। दिस इज अ टूल, और इस टूल का फंक्शन क्या है? 3D स्ट्रक्चर को व्यू करवाना। सिर्फ इसका फंक्शन ये होता है कि 3D स्ट्रक्चर आपके पास जो भी 3D स्ट्रक्चर आता है उससे विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, इसके अंदर आप एक्टिव साइट्स को यहाँ से सर देख सकते हैं, मल्टीपल लिगेंड्स। ये देखें, अगर मैं इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो दैट्स आर चेंजिंग। ठीक है, दिस इज कार्टून, दिस इज लिगेंड। अगर हम लिगेंड को जस्ट शो करवाएं, ये देखिए जी आपको सर। शो हो रहा। यस सर। दी स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं कुछ लाइक दिस, ये ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो कलर हैं, ये देखें, दीज आर लाइगेंड्स। ठीक है, और यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड्स लाइगेंड के साथ बाइंडिंग बना रही है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम 3D विजुअलाइज वीवर होते हैं, वो हमें ये बता देती हैं कि ये किस फॉर्म में कौन से जीन, कौन से अमाइनो एसिड के साथ अटैच हैं, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इनके दरमियान में। ये देखिए, आप इजीली इसको फर्दर आप जूम कर सकते हैं। दिस इज लिगेंड। ठीक है, सो सिमिलरली हम जी सर। ह्यूमन ह्यूमन रिसेप्टर्स एंड वायरल प्रोटीन्स का आपस में इंटरेक्शन करते हैं। दोनों का, दोनों की जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर, दैट्स मे बी अवेलेबल ऑन PDB databases। अगर किसी एक का 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं भी है तो देयर आर मल्टीपल टूल्स that can be convert a primary sequence amino acids into 3D structure। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो प्राइमरी सीक्वेंस है उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद 3D का आपस में 3D के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है, जी सर। then here are some databases and information you should go through these databases। आप खुद इनको ज़रा गो थ्रू करें। अगर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट वन बाय वन हम ज़रा देखते हैं। दिस इज कोडॉन यूसेज डेटाबेस। व्हाट डज इट मीन्स? कोडॉन यूसेज हम क्यों करते हैं? कोडॉन यूसेज डेटाबेस किस लिए होता है? कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं हम? कोई बता सकते हैं कि कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? व्हाट इज कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन? सर ये इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो एंटी कोडॉन और कोडॉन की होती है इंटरेक्शन, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए या स्पेसिफिक रेगुलेट किया जाए। एक्चुअली होता ये है कि जो कोडिंग सिस्टम होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर, दैट्स में सम हाउ डिफरेंसेस, और उसी डिफरेंसेस की वजह से अगर आप
हायर प्लांट से एक जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको, उस हायर प्लांट के जीन को अगर आप डायरेक्ट ही यूक्रियोट्स प्रोक्रियोट्स के अंदर या इकोलाई के अंदर डायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे तो तो पॉसिबल है कि कोई एक्सप्रेशन ही ना आए, क्योंकि प्रोक्रियोट के अंदर सम कोडॉन्स, जो ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन है वो किसी और अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है, लेकिन यूक्रियोटिक के अंदर वही ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन पॉसिबल है किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करें। इसलिए कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक्सप्रेशन कर रहे देख रहे होते हैं या हम एक जीन को क्लोन कर रहे होते हैं तो दिस शुड बी इम्पॉर्टेंट कि हम कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन करें। अगर आप जीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं यूजिंग इकोलाई, देन आपको बैकग्राउंड में जो कोडॉन है उसे ऑप्टिमाइज करना होगा। ह्यूमन बीइंग से अगर आप प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका सीक्वेंस डायरेक्ट ही अगर आप इकोलाई के अंदर एक्सप्रेस करें तो पॉसिबली दैट्स मे गिव नॉट गिव द सेम प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन न दे दे, पॉसिबल है जो हमारा डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के साथ हो। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं इकोलाई के अंदर जो कोडॉन सिस्टम है उनके साथ आपस में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इफ यू आर लुकिंग हियर, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये देखें, these are some information। So अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो दिस इज एन ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स है और उनमें दीज नंबर्स, ये जो नंबर है ना साथ में है, दैट्स एक्चुअली डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कोडॉन। इस कोडॉन की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि कितना परसेंट चांस है या कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये कन्वर्ट हो जाए किसी अमाइनो एसिड्स के अंदर, कौन से अमाइनो एसिड्स में दिस लाइक। ठीक है, सो हम हर डेटाबेस के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे। द सेकंड इज द EPD, यूकैरियोटिक प्रोमोटर डेटाबेस। You can easily estimate what will be the what type of data will be in EPD because it's determining the promoter database। ये देखिए, this is the promoter database of eukaryotic organisms। EPDI, eukaryotic promoter database। What is this? EPDI is a collection of database of experimentally validated promoters for selected model organisms। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं जो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हैं, और कौन कौन से एनिमल और ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे लिस्ट हैं। स्पेशली इन ऑर्गेनिजम्स, इन एनिमल्स से और इन प्लांट्स है, ये फंजाई और ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म से कितना प्रोमोटर वैलिडेट है शायद साथ में मेंशन भी है। लेट्स सपोज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर 29,598 promoter sequences that are well validated and well known। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई प्रोटीन सीक्वेंस है, सॉरी अगर आपके पास एक प्रोमोटर रीजन्स है एंड आप देखना चाहते हैं कि वो प्रोमोटर रीजन के अंदर कौन कौन से फंक्शनल मोटिव्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से फंक्शनल मोटिव्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन सा सिस बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं, उन इस पर्पस के लिए आप इन डेटाबेसेस को यूज करते हैं। ओके, राइट।
Is there any question? Similarly, there is another database. What is the next? Next is homologous vertebrate gene databases. इसके नेम से अगर आपको कुछ इंडिकेट हो रहा है तो देखिए, homologous gene database, what does it means? इसका मतलब ये है कि genes that are performing similar functions in different organisms, okay, that are known as homologous genes. Those genes are group of genes that are performing similar function in different organisms. For example, अगर हम एक्वापुरिन की बात करते हैं, that's a water transporter protein that's also performing water transporter activity in human being, as well as it's also providing the similar function in the plant genome like cotton, Arabidopsis, etc. So the protein or the gene may be homologous to each other, and they are performing same activity but in different organisms. So this is a database for homologous genes. Homologous gene के लिए है, अगर आप एक जीन यहाँ पे सर्च करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो पॉसिबल है कि उससे रिलेटेड उसकी होमोलॉग्स प्रोटीन जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे वो भी आपके सामने आ जाएगा. ओके, then next, intron sequence and information systems. Then the next is ribosomal database. This is, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सारी की सारी जो डेटाबेसेस हैं इनसे गो थ्रू करना है प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर. नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम इन सारी के सारे डेटाबेसेस से गो थ्रू करेंगे. ओके, ओके. ओके. genome databases. These are some स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड डेटाबेस. ऐसा ही था, अगर आप देख लें तो फिर ये सारे के सारे जो डेटाबेसेस हैं ये सब्जेक्ट टॉपिक स्पेसिफिक है. Plant care is just only providing information about plant cis-acting regulatory elements. Similarly, codon optimization is only provide the information about codon usage. So next, there are some other databases that are providing the complete genome information that are known as genome database. कुछ ऐसे databases हैं जहाँ पे क्या है, जो हमें complete genome information provide करते हैं. For example, there are some databases. अगर आप मेज database के ऊपर जाते हैं तो you will get the complete information of maize genome. Okay, currently this is not working, so maize. Okay, so there are some different in the link of maize database. Actually वो old version है, अब ये new version है. So इसको अगर आप देखते हैं तो ये देखें maize genome database. It means it's providing the complete genomic information of maize plant. ठीक है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो this is about
This is the home page. This is the about this databases. This is the community. Community के अंदर कौन कौन से लोग These are browsers and some information. There may be different information. ये ब्लास्ट हम कर सकते हैं इसके जीनोम के अंदर अगर कोई सिमिलर जीन फाइंड करना चाहते हैं तो हम हमारे पास जो भी सीक्वेंस है हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो उससे सिमिलर मैज जीनोम के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे वो हमें रिजल्ट में आउटपुट के तौर पे आएगा इसे हम ब्लास्ट कहते हैं डाउनलोड के ऊपर हम जाते हैं तो वी कैन डाउनलोड द जीनोम ऑफ कंप्लीट मेज दीज आर डिफरेंट जीनोम्स ये डिफरेंट है तो मेज ही हैं बट डिफरेंट वैरायटीज हैं ओके different varieties you know these are different versions of gene the reference gene ये देखिए reference genome first was released in 2019 then 2010 13 and 2020 that's the reference genome of maize plant ठीक है ये इस वर्जन के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी वजह ये है कि you know with the passage of time and advancement in the, sequencing techniques अब बहुत सारे न्यू टेक्निक्स भी इंटीग्रेट करते हैं और सीक्वेंसिंग के दौरान so those new techniques provide additional information for the genome assembly definitely it will improve the quality of a genome and as well as the contents of genome जितना भी हमें genome contents और quality required हैं वो सारे के सारे new sequencing के साथ हमें मिल जाता है ओके देन देयर आर tier databases ये Arabidopsis के ऊपर genome Arabidopsis के genome databases available हैं Ensemble this is a platform for human being and vertebrates and ERIC that's are enteropathogen databases and some are microbial pathogens JGI this is another genome browser providing the microbial genome and the MGI is the is the database that is providing the mouse genome information okay so we will also go through some of these databases in the coming practical sessions again अगर आप इनको देखते हैं तो यूनिप्रॉट हम गो थ्रू कर चुके हैं एंड PIR we have also gone through this website Swissprot हमने देख लिए हैं ProCyte this is a database of protein family DIP interacting protein sequence PFAM this is protein domain databases Prodome comprehensive set of protein domains so ये सारे के सारे databases हैं different databases having different informations inshallah in our practical sessions we will try to cover all these protein databases okay I think this is enough for today in the next lecture we will also go through some of these databases ठीक है काफी आज के लिए if there is any question please let me know no question there is no any question Yes, sir. Yes, sir. अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट you can join me at genomics lab that is located in the front of cohort office ठीक है और अभी तो ख्याल कैंपस ऑफ हैं बट
जो ही कैंपस ओपन हो, आप लोगों में से किसी को कोई इशू हो तो समटाइम्स मोस्टली स्टूडेंट मेरे नीचे दूसरे ऑफिस में जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी हैं, बट मैं वहाँ पे कम ही रहता हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पे काम कर रहा होता हूँ जीनोमिक्स लैब में। सो यू हैव टू विजिट जीनोमिक्स लैब फॉर एनी क्यूरी। ओके, Okay, sir. सो थैंक यू सो मच। सर अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई है। Yeah.